Hello everyone, welcome back. So I hope you are clear that what we are doing in the last video. Okay, so in the last video we are doing or cover the syllabus. Okay, of high temperature materials. Okay, so let's start. So our first topic is fracture. Okay, so see here there are some types of the fractures. Okay, in the metals. So first start with the concept of the material strength and fracture has long being studied to the overcome failure. Okay, मतलब हम इसकी मतलब क्यों कर पढ़ते हैं हम इसको, हम सिर्फ जो मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है और जो फ्रैक्चर हो रहा है उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम फेलियर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर जैसे हम कभी भी यूज़ करते हैं तो हमें उसके प्रॉपर्टीज़ उसके बारे में पता हो, तो इसलिए हम सिंपल सा फेलियर के बारे में और फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ा पाते हैं। तो एक्चुअली फ्रैक्चर है क्या चीज़, तो ये डेफिनेशन है। ओके, सो द सेपरेशन, सेपरेशन मीन्स अलग अलग होना। ओके, एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, समथिंग of a solid body into two or more parts under the action of stasis, okay, is known as fracture. Simple. Okay, like I draw here, there is a specimen. Okay, and I applied stasis. Okay, this is like tensile load. Okay, so you actually you see that जब भी हम कभी ऐसे लोड लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ नेकिंग बनता है पहले कुछ मेटल्स में। ओके, और इसके धीमे धीमे नेकिंग जो है वो थोड़ा सा कम होता चला जाता है इसका थिकनेस, और एक टाइम पे जाने के बाद में ये कुछ इस तरीके के दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो जाता है। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो टायर क्रैक आ जाता है सिंपल इस तरीके से, जो कि फिर वो दो पार्ट्स में ऐसे अलग अलग डिवाइड हो जाता है। ओके, सो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। एंड सी थर्ड पॉइंट, द इंट्रोडक्शन ऑफ malleable iron during the revolution of the metals construction lead to the perception of brittle and ductile fractures, okay, as well as the fatigue failure in the metal. So अब जो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, so see here, failure in the metallic materials. Okay, so we divided it into two parts. First is ductile failure and second is brittle failure. So what is ductile fracture? Ductile fracture involves a large amount of the plastic deformation and can be detected beforehand. And okay, and in a ductile fracture is more catastrophic and has been intensively studied. Okay, so now you can see here first how the fracture is happen. So first imposed stress, okay, on anybody or anything. After that the crack formation is started, after that propagation. Okay, so now see here, this is the main thing. So you can see here there are two types of the material, first is ductile and another is brittle. Okay, so failure are also different for both the materials. Okay, so like first I get a specimen. Okay, it is made of the ductiles. So I used
UDL machine. Okay, here after UDL machine I applied the tensile stress. Okay, so you can see that in this figure also, that in the ductile materials, neck formation is started when we apply the stress. Okay, so जैसे जैसे कि हम स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे वैसे ही इसका जो है ये नेक फॉर्मेशन जो है बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब ये क्या चीज़ है, अगर इसमें नेक फॉर्मेशन बन रहा है स्पेसिमेन में, तो सिंपल सा मतलब है कि वो डक्टाइल मटेरियल है। ओके, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो नेक फॉर्मेशन बन रहा है इसमें, ये स्ट्रेस लगने की वजह से। ओके, एंड इधर भी देखिएगा ये क्या है, मॉडलिटी डक्टाइल्स। सो इसमें क्या है, मॉडलिटी डक्टाइल्स में सेम ऐसे ही लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, मॉडलिटी डक्टाइल्स में कि यहाँ पर ये इस तरह की क्रैक्स आ जाते हैं जिग जैग फॉर्म्स में। इसमें ना तो ये मतलब ये जो था नेक टाइप का नहीं बनता, इसमें जिग जैग टाइप का सा बनता है, थोड़ा सा ऐसे बना हल्का सा अंदर को नेक बना, नेक बनने के बाद में इसको जिग जैग हो गया। ठीक है ना, सिंपल। एंड लास्ट इज brittle. So in brittle, same here, we take a specimen, UDL machine, apply load, tensile load. In brittle materials, the specimen cracked in straight. Okay, there is no neck formation, there is no zigzag formation, there is a straight cutting. Okay, and if sometimes how you know about the figure, if I give you some figures, okay, so then how you know that it is the ductile failure or the brittle failure? So इसके जानने के लिए सबसे पहले देखिएगा डक्टाइल इस तरीके से। ओके, सो हमको पता है डक्टाइल में कुछ इस तरीके का बन रहा है नेक टाइप का, तो ये सिंपल नेक हो गया। ओके, अब देखिएगा बी ब्रिटल हो गया। अब इसमें देखिएगा सिंपल यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनना, मतलब सिंपल क्रैक इस तरीके का। ओके ना, आप इससे पहचान कर लोगे कि कौन सा डक्टाइल मटेरियल की फिगर है और कौन सा जो है ब्रिटल फेलियर का फिगर है। ओके, तो इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है फेलियर्स ऑफ द पाइप्स। तो देखिएगा इस वाला ये वाला पाइप बना हुआ है। ओके, सो आप इस पाइप में देख पा रहे हो कि ये किसका बना हुआ है, डक्टाइल मटेरियल्स का। ओके, डक्टाइल मटेरियल्स में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये क्रैक है। ओके, ये क्रैक हुआ है, क्रैक फॉर्मेशन हुआ है, बट डक्टाइल फेलियर में जो क्रैक फॉर्मेशन हुआ वो सिर्फ एक पीस में, यहाँ पे प्रॉब्लम था यहीं पे हुआ और लार्ज डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना, और ये जो पाइप ये किस बना हुआ डक्टाइल का, और ये देखो ये बना हुआ है मेटल किसका, मेटल का। तो आप इसमें देख रहे हो कि जब भी क्या जब फेलियर होता है या वो हो रहा है तो किसी ना किसी स्ट्रेस अप्लाई हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसकी वजह से हो रहा है। सेम थिंग इधर हो रहा है। मान चलो ये एक सिंपल सा पाइप पड़ा हुआ था, यहाँ पे हमने किसी स्टोन को फेंका, फेंकने की वजह से क्या हुआ, उस ये जो प्लास्टिक ये जो था ब्रिटल का पाइप, इसमें क्या था, इसमें बहुत सारे ऐसे क्रैक आ गए। आप नॉर्मल लाइफ में जैसे हमें पता चलता है, जैसे हम प्लास्टिक के पाइप यूज़ करते हैं, कभी भी उसमें कुछ लग जाता है तो उसमें बहुत सारे वो हो जाते हैं, बहुत सारे पीसेस में वो हो जाता है। सिंपल हम जैसे कि ग्लास को भी देखते हैं ना, कि अगर मान चलो वो उसमें कुछ मार दिया है, वो कुछ गिर गया तो बहुत सारे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, सिंपल। तो इस वाले में देखिएगा इधर ये सम फैक्टर्स हैं जो कि मतलब फेलियर को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो देखते हैं। सबसे नंबर फर्स्ट फैक्टर है मेट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट। ओके, सो फॉर द ब्रिटल फेलियर it is large grain materials with the zip means grain boundary problems, like जैसे कि ये एक स्पेसिमेन है। ओके, तो इसमें जो है क्या होगा, ये जो इसके ग्रेन है वो कुछ बड़ा बड़ा सा है, मोटा मोटा है नहीं। अब आप देखोगे, चलो मैंने पूरे का पूरा ग्रेन्स है इसके, तो अब आप देखोगे जबकि मैं इसमें इस तरीके का स्ट्रेस लगाऊंगा।
ओके। तो आपको क्या है कि ये देख रहे हो आप, एक यहाँ पर से मान चलो इसमें क्रैक होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट। तो सिंपल आपको पता है कि लार्ज ग्रेन है, लार्ज ग्रेन में सिंपल सा ऐसा हो गया। अब यही चीज़ इधर देखिएगा कि एक ये था, ओके। तो इसमें क्या है, इसमें जो वेरी फाइन ग्रेन्स होते हैं, तो मतलब ऐसे बहुत छोटे 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 छोटे, ठीक है ना, ये इस तरीके के इसमें ग्रेन्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान चलो अब ऐसे हमने स्ट्रेस लगाया, तो आप क्या देखोगे कि ये कुछ, ये जो ग्रेन्स हैं ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे ना डिस्ट्रीब्यूट, कुछ मतलब इस तरीके से ये एक साथ आपस में रहना चाहेंगे, क्योंकि इसका जो ये जो ग्रेन्स है इसका बहुत छोटे छोटे, मतलब डायमेंशन में बोलूँ तो बहुत छोटा है इसके ब्रिटल के मुताबिक, ओके। तो ये कुछ नेट टाइप का बनाएंगे ना, क्योंकि ये आपस में ही रहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, जिस तरीके से जल्दी से आपस में कैक नहीं हो पाएंगे, आपस में बॉन्ड रहेंगे। तो इस तरीके से ये नेक फॉर्म बना देते हैं इस वाले में, ओके। एंड इसमें देखिएगा टेम्परेचर, इसमें लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ओके। स्टैटिक स्टेट ऑफ द स्टेसिस, ट्राइएक्सियल स्टेट, ओके। इसमें एब्सेंस ऑफ द नोच होता है, इसमें नोच इफेक्ट होता है, इसमें स्ट्रेन रेट में देखिएगा हाई स्ट्रेन रेट, लो स्ट्रेन रेट, और लोडिंग कंडीशन में इसमें ये हो जाता है, इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ओके। सुपर प्रेस द क्रैक इनिशिएशन। यहाँ पे देखिएगा आप इस वाले फिगर में ये आप देख रहे हो कि ये कुछ जो आप देख पा रहे होगे कि ये जो बन रहा है, क्रैक हुआ, क्रैक फॉर्मेशन हुआ, फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें डक्टाइल फ्रैक्चर में क्या हुआ, डक्टाइल फ्रैक्चर में हुआ कि ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये एक मतलब जैसे कि ये फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है कि एक प्लेन सरफेस होता है, नहीं, जो कि विक्टल में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी पीछे, जो प्लेन होता है वो विक्टल में होता है। देखिएगा आप दोनों फ्रैक्चर के बाद में प्लेन है एकदम से, लेकिन डक्टाइल में प्लेन नहीं है, यहाँ पे नोज टाइप का या वो बन रहे हैं, कर्व्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो इधर कैप टाइप का, इधर कैविटी टाइप का। ये क्यों हो रहा था, ये इसीलिए हो रहा था, जैसे अभी बताया था पीछे लास्ट वाले स्लाइड में मैंने आपको, कि इसके जो ग्रेन्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि देखिएगा आप बहुत आसानी से इधर देख सकते हो कि इसकी जो वो है ग्रेन्स कितना छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक सा है, नहीं, देखिए कितना छोटा छोटा, ऐसे बहुत सारे पता ना कितना ग्रेन्स है, ये सब छोटा छोटा। लेकिन इसमें विट्ठल वाले में बहुत बड़ा बड़ा ग्रेन्स होता है। इसकी वजह से मान चलो अगर मैं ये सिंपल देखो, अगर मान चलो ये एक स्पेसिमेन होता, अगर इसमें क्रैक होता तो क्या होता, यूँ करके यूँ जाता, यूँ जाता, यूँ करके कैसे घूमता घूमता यहाँ पे नहीं है, इस तरीके से यूँ होता होता। तो मतलब ये आपस में बॉन्ड है, जब ये एक दूसरे के से दूर जाते तो आपस में बॉन्ड होने की वजह से ये थोड़ा सा में एलोगेशन होता, एलोगेशन होने की वजह से ये चीज़ आ जाती है, ओके। और इसमें क्या था आप यहाँ पे देखिएगा, जब ये टूटेगा तो एकदम से कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट टाइप का। लेकिन इसमें कितना सारा कर्व होता 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 ऐसे जा रहा था, ठीक है ना। तो ये सिंपल आप समझ गए होंगे कि किस वजह से वो एकदम स्ट्रेट था और इसमें क्यों कर्व बन रहे थे। इसमें बड़े बड़ा ग्रेन्स था, ओके, तो इस वजह से ये हो गया। और इसमें अब देखिए हाई एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ओके, बाय द माइक्रोबर्ड्स consonants during the ductile fractures, okay, and low energy is absorbed, okay, simple things. It is less catastrophic, more catastrophic। अब देखिएगा इसमें कि जो इसका जो फेलियर्स होते हैं डक्टाइल और रेक्टाइल, इसका एवोल्यूशन कैसे होता है, सिंपल। मान चलो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक ये हमने लिया स्पेसिमेन लेते हैं, हम इसको फिक्स करते हैं यूडीएल मशीन में, यूडीएल मशीन में फिक्स करने के बाद में मान चलो हमको टेंसाइल लगाना है, ओके, क्योंकि हमको इसके दोनों पार्ट्स को एंड्स को दूर दूर ले जाना होता है, इसलिए हम इसको टेंसर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने जब इसमें स्ट्रेस लगाया, जब हम ये है बिना स्ट्रेस के, मान चलो एकदम जैसा लिया था सेम, लेकिन जैसे ही हमने स्ट्रेस लगाना स्टार्ट किया तो आप देखोगे कि नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके।
स्ट्रेस लगने से नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही कुछ थोड़ा स्ट्रेस को और जैसे ही स्ट्रेस को और इंक्रीज करते हैं, जो नेक फॉर्मेशन था यहाँ पे वॉइड बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो ना, नेक नेक में जो है वॉइड बनना स्टार्ट हुआ, वॉइड न्यूक्लिएशन हो गया। फिर इसके बाद में हमने फिर थोड़ा सा स्ट्रेस को और बढ़ाया, तो जो ये वॉइड थे ना, वॉइड सारे वॉइड को मिला करके एक बहुत बड़ा वॉइड बन गया। वॉइड क्या होता है? सिंपल, वॉइड कुछ नहीं, एक खाली जगह को ही वॉइड बोलते हैं, मतलब स्पेस। स्पेस को ही हम वॉइड बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना उसमें, 11th-12th के केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे कि वॉइड फॉर्मेशन वहाँ पर केमिस्ट्री में। तो सिंपल वही चीज़ है यहाँ पर भी, बस केमिस्ट्री से ना जोड़ो, वो बहुत टफ थी। टफ क्या थी, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता था। कोई नहीं, छोड़ो यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने थोड़ा सा स्ट्रेसर किया, तो ये जो एक बहुत बड़ा वॉइड बन गया, मतलब सारे जो छोटे छोटे वर्ड्स थे उसको एक ग्रोथ हुआ उसमें, और वो सारे के सारे वर्ड एक जगह लिंक हो गए, एक बड़ा वर्ड बन गया। और उसके बाद में फिर हमने थोड़ा सा स्ट्रेस को और इंक्रीज़ किया। इंक्रीज़ करने के बाद क्या, जो वर्ड जो था उसके पास से क्रैक ट्रांसफ़र हो गए आउटर सरफेस तक। और जब एक बार कोई भी आउटर सरफेस तक क्रैक पहुंच जाता है, तो आपको पता है जब क्रैक उसके पास पहुंच गया तो हमने और इसमें स्ट्रेस दिया, और ये यहाँ पे अलग अलग दो फ्रैक्चर्स हो गए। ओके, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। ओके, सो डक्टाइल फेलियर। डक्टाइल फेलियर में क्या होता है? हैज़ extensive plastic deformation. Okay, extensive plastic deformation in the vicinity of the advancing crack. Okay, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें किस तरीके का हो रहा था क्रैक फॉर्मेशन। इन द प्रोसेस relatively slow, the neck the crack resist any further extension unless there is an increase in the applied stress। मतलब क्या हुआ कि जैसे अब इसमें नेकिंग वाला बन रहा है, नेकिंग मतलब ये डक्टाइल का, ये समझो डक्टाइल वाला प्रोसेस है ये। तो सिंपल सा कि अगर यहाँ तक हम पहुँच गए, इस प्रोसेस तक हम पहुँच गए, यहाँ पर इस वाले प्रोसेस में हम, अगर हम यहीं पर इसमें स्ट्रेस लगाना जो है बिल्कुल बंद कर दें, स्ट्रेस को ख़त्म कर दें, तो क्या होगा, ये जो फॉर्मेशन था वो यहीं पर रुका रहेगा। ओके, इसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जैसा है मटेरियल वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम सेम चीज़ इधर करते, विक्टिल में करते, तो विक्टिल में क्या होता था कि सीधा ये था। ओके, हमने इसको यूटीएल पे लगाया था, इसमें क्या था, सिंपल क्या होता था, इस तरीके से ये इसमें क्रैक हो जाता है बीच में, यहाँ से क्रैक होकर दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। ओके, स्ट्रेट, सिंपल, इतना कुछ होता। तो यहाँ पढ़ते हैं, क्रैक में भी स्प्रेड वेरी फास्ट वेरी रैपिडली। वो रैपिडली होता है क्योंकि उसमें हमको बार बार स्ट्रेस लगाना पड़ता है। इसमें ये स्ट्रेस हमने अप्लाई किया और ये डायरेक्ट एक ही बार में स्ट्रेट टूट जाता है। तो वाइल लिटरे डिफॉर्मेशन, these cracks are more unstable and crack propagation will continue without an increase in the applied stress। ओके, मतलब एक बार क्रैक हो गया तो हमें स्ट्रेस को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो एक बार में सारे का सारा वो होता रहेगा, इंक्रीज होता ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये दो आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल। ओके, तो इस फिगर में आप ये वाला एरो को देखिएगा, ये जो एरो गिवन है, इस एरो का ये जो पॉइंट है, इट इज द origin, ओके, फ्रॉम वेयर द क्रैक इज इनिशिएटेड। ओके, सो यहाँ से ही क्रैक फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके से आप देख पा रहे हो। सेम ही रहा, यहाँ से क्रैक हुआ तो यहाँ से बढ़ते 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 ये इस तरीके से पूरा ही ये क्रैक हो गया। सेम इसी चीज़ में आप देख पा रहे होगे कि ये यहाँ से साफ दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था क्रैक फॉर्मेशन, ये इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ से स्टार्ट होते होते कि कुछ इस तरीके से देखो, सिंपल आप देख सकते हो। पीछे थोड़ा सा अगर मैं करूँ, आप इसको पीछे जाके थोड़ा सा देखिएगा कि इमेज कैसा था। तो और मैं आपको दिखाता हूँ। ओके,
तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इमेज किस तरीके से वो हो रहा था और प्रोपेगेट हुआ था। ओके, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इस पॉइंट से जहाँ पे ये एरो बना हुआ है। देखिएगा इधर, ये आप देख पा रहे हो ना, ये लाइन लाइन बन रही। लाइन हमको क्या पता चल रहा है लाइनों से कि जो क्रैक हुआ था वो कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ है, क्रैक फॉर्मेशन क्या है। तो आप देख पा रहे हो ना इसको, लाइन्स कैसे बन रही हैं ये, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मतलब आखिरकार फ्रैक्चर ये हो क्या रहा है, फेलियर में हो क्या है। इसके दो पार्ट थे फ्रैक्चर्स के, विक्टर एंड डक्टाइल। ओके, और हमने इन दोनों पार्ट्स को अभी कवर किया। तो समझ आया होगा, बहुत सिंपल है, इजी है यहाँ तक। अभी धीमे धीमे हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।